it. It is a wonderful, fabulous film. तो ये होगी मेरी लास्ट रिकमेंडेशन थी इनटू द स्पाइडर वर्स. नाउ फातिमा, आपकी तीसरी रिकमेंडेशन क्या है? फाइंडिंग नीमो. फाइंडिंग नीमो मैंने कल रात को देखी यार. क्या फिल्म है, क्या फिल्म है. बहुत प्यारी है, बहुत एंगेजिंग है. पता है क्या होता है ना, कभी कभी काफी दफा लोगों को लगता है कि एनिमेशन फिल्म है ये बच्चों के लिए. एनिमेशन फिल्म सिर्फ बच्चों के लिए होती है, ये सच नहीं है. काफी सारी एनिमेशन फिल्म्स आपके इंटेलेक्ट को इतना चैलेंज करती है, आपके सोच को इतना चैलेंज करती है कि it's not only meant for children, it's also meant for adults, and adults are going to find more nuances in films like this. correct. तो एक बेसिक, हाँ, तभी एक अच्छी फिल्म बनती है. क्योंकि बच्चों के लिए फिल्म बनाना मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने यू नो फाइंडिंग क्या कहते हैं पेपा पिग टीवी पे चला के छोड़ दिया है. हाँ. To make a film like Finding Nemo, there has to be so much layering, but the storytelling formats are complete, but it doesn't feel frivolous, but it doesn't feel like your children won't understand it. Yeah, I like the fact that these people do not dumb the film down, you know, assuming कि बच्चों को समझ नहीं आएंगी ये चीजें. नहीं, वो लोग dumb down नहीं करते. वो लोग बनाते हैं फिल्म as for some, like for an intelligent person basically, and for a person जिसको पता नहीं है but वो देख के समझ में, मतलब दूसरी चीजें समझने लगता है. तो मुझे उस फिल्म के बारे में वो चीज बहुत अच्छी लगी और काफी एंगेजिंग है. and again, you know, it has a message. It's basically a father who's very possessive about his child, और वो इतना डरा हुआ है, इतना possessive है because वो उससे इतना प्यार करता है कि वो बहुत ज्यादा cautious है कि नहीं तुम मत जाओ. But because of that, he pushes the child away and the child falls into trouble. And the whole journey of the father looking for his child and the adventure and how the child is also surviving and figuring out how to get out of that fish tank. It's an adventure. And the realization. So it's an adventure and a realization of the father कि नहीं, बच्चा है इसको लेकिन मुझे छोड़ना पड़ेगा ताकि ये बड़ा हो सके, ताकि ये समझ सके दुनिया को. And also, Finding Nemo also talks about differently abled people, because the protagonist Nemo, his one wing fin is smaller than the other fin. So he cannot swim properly. He has trouble swimming, and that's why his father is so possessive of him, right? Because he's differently abled. So that is also a beautiful lesson for your children to learn from that film, because चाहे कोई कमी हो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एक कमी समझो. Correct. And also Dory's character, she has ADD, उसको कुछ चीज ध्यान ही नहीं रहता, attention deficit disorder है उसको. So that is also a mental health conversation that you can have with your children after watching these films, because इन फिल्मों का ना देखो फायदा ये होता है कि it captures your children's attention because there's so many colors and animation and funny voices and underwater and different magic and everything. But also these films give you very easy stories to discuss with your children. And you know, get the right message out to discuss with your children. I think ऐसी एक आदत बनानी चाहिए लोगों को और पेरेंट्स को, जो भी है, जो फिल्म देखते हैं ना, फिल्म देखने के बाद उस पर डिस्कशन होना चाहिए. बिल्कुल. कि कभी कभी क्या होता है ना, हम फिल्म देखते हैं, हम लोग निकल लेते हैं, फिर हम लोग अपनी जिंदगी में वापस घुस जाते हैं, पर और हमारा अटेंशन स्पैन भी इस वक्त इतना लो हो गया है ना कि, और फिल्म व्यूइंग ऐसी चीज है जो कम्युनिटी और बहुत इजीली लोग साथ में कर सकते हैं. जैसे अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो, आप किसी के साथ बैठ के किताब पढ़ना थोड़ा मतलब इम्पॉसिबल है, पर फिल्म आप बहुत लोगों के साथ एक साथ देख सकते हो. तो एक बार मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज देखो, उसको ग्रास्प करो, अंडरस्टैंड करो, you must discuss it to understand what other person is understanding, what you have missed while watching it. It will only help you grow and understand it better. Yeah, no, absolutely. And that's what, you know, I some honorable mentions in here. I would say Coco. If you've seen Coco, it's a beautiful film. What a wonderful film, right? Again, it's about this boy who gets thrown into this magical world where he doesn't realize कि वो जाने वाला है इस magical दुनिया में, बस वो पहुंच जाता है. और and also इन फिल्मों से आप एक तो अपने बच्चों को self respect सिखाते हो कि कैसे भी सिचुएशन में आप फंस जाएं, कहीं पे भी आप चले जाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आप
उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, राइट? नेवर बी अफ्रेड. And it's a musical, so there's like nice music going on in that film. So Coco again is one of those films that, like you said, picture देख के उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए घर पे, you know. थिएटरों में तो मौका पता नहीं कब मिलेगा बाहर जाके फिल्म. एटलीस्ट जब थिएटर से गाड़ी में बैठ के घर वापस आते होते थे तो मिलते थे 5-10 मिनट डिस्कस करने के लिए. वही अभी आई थिंक वो इतना मतलब सिंगुलर कंजम्पशन ऑफ मीडिया हो रहा है ना हमारा, कि हम लोग अपने में ही रह जाते हैं. मतलब बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली बैठ के सोचते हैं जो देखा है उसके बारे में, नहीं तो एक चीज के बाद हम दूसरी चीज देखते हैं. My sister is yelling High School Musical. No, Sugandha Tyagi. No. High School Musical is not a recommendation for children. High School Musical gave me very unrealistic expectations of one day Zac Efron मिलेगा मुझे और मुझे प्यार हो जाएगा और Zac Efron से शादी हो जाएगी मेरी. किसी ने मेंशन किया था What's Eating Gilbert Grape. मैंने देखी है, मुझे याद है कि बहुत अच्छी फिल्म है. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर आई रिमेम्बर लाइकिंग. लियोनार्डो डिकैप्रियो की पहली पिक्चर थी ना? पहली थी या पता नहीं, पर आई थिंक उससे पहले भी उसने कुछ काम किया, पर he was very young. Yeah, there's this word seal. I Gamble is saying Inside Out. Korak Roy is saying Brave. Yes, absolutely. Both wonderful recommendations. Up, absolutely. Up. Moana. Have you seen Moana? हाँ देखिए, थिएटर में. Moana बहुत बढ़िया है. Zootopia देखी है आपने? Zootopia हाँ देखी है, वो भी बहुत प्यारी फिल्म है. Again, Zootopia again. And these films, like we are saying, are not boring for adults. तो ये ना सोचे कि अरे बच्चों की फिल्म है हम क्या देखेंगे. Zootopia is one of the most fun films I've ever seen. You know, I loved it. Yeah, even I really enjoyed it. And such strong characters. The characters remain with you, like Sloth and all the other characters. They remain with you. मतलब मैंने तो बहुत अरसों पहले देखी है, फिर भी मुझे याद है. उसमें शकीरा भी है, शकीरा का गाना भी है उस पिक्चर में. ऐसे कुछ तो भी वो डाल. Okay, so let's do a little recap of the films that we've recommended so far. हमने सबसे पहले बात करनी शुरू की चाची 420 के बारे में, because फातिमा सना शेख उस पिक्चर में थी as भारती. बच्चे का नाम भारती कौन रखता है मुझे समझ नहीं आता. उसके बाद फातिमा ने रेकमेंड की सबसे पहले तारे जमीन पर. फिर आपने की, फिर मैंने रेकमेंड करी स्पिरिटेड अवे, जापानीज फिल्म. फिर मैंने की ईटी, और फिर आपने ईटी के बाद मैंने रेकमेंड करी इनटू द स्पाइडर वर्स, व्हिच इज ऑन Amazon Prime Video. Amazon Prime. और उसके बाद मैंने की फाइंडिंग नीमो. मेरा 3 हो गया. अब आपकी बारी है. नहीं, मेरे भी हो गए 3. अभी हम चाची 420 को एक मानेंगे, बट उसके अलावा एडिशनल स्पेशल मेंशंस में we did Coco, we spoke about Zootopia, we spoke about what else? एक और कितने हमने भी? Up, What's Eating Gilbert Grape. Moana. What's Eating Gilbert Grape. So Vaibhav is saying Kubo and the Two Strings. I have been wanting to watch Kubo and the Two Strings for a while. Imran Hashmi murder बिल्कुल भी नहीं. Basically फातिमा और हम ये बातें कर रहे हैं www.cry.org के लिए. There is a link in my bio. You can go to that link and you can help out Cry. It's a wonderful organization. There's families all over the country right now who've lost their livelihoods और उनके बच्चे हैं, they can't go to school. So Cry is providing them with hygiene kits, with ration और toys भी provide कर रहे हैं, so that the children remain engaged जिनके पास अपने खिलौने नहीं हैं. So that's that. Fatima, before I let you go, real quick, बताओ मुझे आजकल आप क्या कर रहे हो? Are you watching something new? आप अटक गए. Are you reading something new? What's going on? मैं अभी तक ये सारी चिल्ड्रन वाली, बच्चों वाली फिल्में देख रही थी क्योंकि हमारा इंटरव्यू था इस चीज के ऊपर. पर अदरवाइज मैंने ग्रेट गैट्सबी देखी रिसेंटली. मैंने कभी देखी नहीं थी और बहुत रोई. मतलब मेरा दिल दुखने. बहुत क्या है? बहुत रोई. द ग्रेट गैट्सबी देख के बहुत रोई मैं. मतलब हाँ. फिर मैंने मदर इंडिया देखी. I really enjoyed it. I think it's still very relevant and very engaging. So I liked that. Then platform देखी. Netflix पे है. बहुत प्यारी फिल्म है. horror/thriller. और भी मैंने बहुत सारी चीजें देखी, बट अभी इतना सारा देख लिया कि दिमाग ही बंद हो गया. Yes, absolutely. But listen, thank you for talking to me about this. क्योंकि हम सोच रहे थे
टाइम से कि क्या करें इंस्टाग्राम लाइव पे, फिर हमें ऐसा टॉपिक मिल गया अच्छा सा, तो हम और ऊपर से सही चीज के ऊपर है और मुद्दा भी सही है और एट द सेम टाइम किसी सोशल कॉज के लिए है, जो आई थिंक फिल्मों के जरिए, जैसे हम बोलते हैं कि फिल्मों के बारे में बात करनी चाहिए, जो कुछ कह रही है वैसी फिल्में देखनी चाहिए। सो हमने भी वही कोशिश की है कि फिल्म के जरिए किसी चीज के बारे में बात की है जिससे लोगों को मदद मिले, जिससे आप अवेयर हो कि क्या कंडीशन है बच्चों की, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, और कोई ऐसी संस्था है जो बच्चों की मदद करना चाह रही है और उनके परिवार को मदद करना चाह रही है। So thank you for involving me in this, and yeah, thank you. थैंक यू सो मच फाटी। एक और अच्छा सा टॉपिक ढूंढेंगे एट सम पॉइंट, और फिर हम Done. एक और इंस्टाग्राम लाइव करेंगे एट सम पॉइंट। Done. बाय बेब। Bye. Love you. और थैंक यू जो लोग भी हमें देख रहे थे और रिप्लाई कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे। प्लीज बाद में जाके इस फाउंडेशन के लिंक पे फॉलो की, मतलब जाइए, डोनेट कीजिए, जो भी आप कर सकते करिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप डोनेट नहीं कर सकते उससे भी मदद मिलेगी। करेक्ट, So, एग्जैक्टली। अगर डोनेट नहीं कर सकते तो शेयर कीजिए, उतना भी काफी होता है, किसी और के पास स्टोरी पहुंच जाए। करेक्ट। ठीक थैंक्स है, फाटी, बाय। बाय, लव यू। लव। Okay, so guys, thank you so much for watching. I was just